Hi friends, this is Babu sir from Babu sir's group tuition. Today I'll be explaining you about sums of gravitation force, SSC first chapter of physics. Now when we do sums on gravitation force, in physics we have to understand properly all the formulas and all concepts starting from standard 9th. Standard 9th, the first chapter in physics that you all have done was distance, speed and time. Right? And distance, speed, time. The last thing you all had was acceleration also. So, whenever you will be doing physics, you have to know the speed, time, distance, acceleration formulas. That means whenever something falls from a certain height, so the fall will be because of gravitational force. Now this word what we are getting, gravitational force, is wrong. It should be because of gravity or because of acceleration due to gravity. So we have the first thing, that is, we'll take the small g, or you can take a. Now acceleration का मतलब speed will go on increasing, speed बढ़ते जाएगा. अब speed बढ़ेगा क्यों? Because someone is trying to push it. So जब उसको push मिलते जाएगा तो उसका speed automatically will go on increasing. That is the acceleration. That means if a car is moving now, might be at 30 meters per second, थोड़े टाइम के बाद 40 हो गया, थोड़े टाइम के बाद 50 हो गया, थोड़े टाइम के बाद 60 हुआ, मतलब the speed is increasing. So speed will increase due to acceleration. In the same way, if you fall from a particular height, your speed will also go on increasing. That is because of gravity. That is why you call acceleration due to gravity. So we have this acceleration. Acceleration का मतलब जिसके वजह से हमारा speed जो है वो increase होता है. हर कार में एक एक्सेलेरेटर होता है. तो एक्सेलेरेटर दबाओ, so what will happen? The car will move fast. In the same way, अर्थ का नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वजह से if something falls down, the speed will go on increasing. That is acceleration due to gravity. So there are acceleration. Acceleration किसी के वजह से भी हो सकता है. अभी सपोज एक कार है, सपोज. So कार में जो acceleration है, कार का स्पीड इंक्रीज होते जाता है. अब कार का जो स्पीड इंक्रीज होता है, that is not due to gravity. That is because तुम उसको एक्सेलरेट कर रहे अंदर से, उसके पास एक्सेलरेटर है अंदर. सो दिस विल बी एक्सेलरेशन. बट इज समथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, अगर ये कुछ फॉल हो रहा है ऊपर से, तो अब ये नीचे क्यों आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो दिस यू कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Right? So because the chapter is gravity,
So this is the first thing I wanted to explain you, bhai, what is gravity. Gravity का मतलब that is not कि भाई gravitational force. Gravitational force is something different, right? This is something falls on the ground, the speed goes on increasing. Why it is increasing? Because acceleration due to gravity, that is the G part. एंड कार का स्पीड क्यों इंक्रीज होता है? वो ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज नहीं होता, वो तो उसके खुद का ही उसके पास एक्सीलरेटर है. लेकिन एनीथिंग फॉलिंग ऑन द अर्थ उसका भी स्पीड इंक्रीज होगा, दैट वो अर्थ पुल कर रहा है. तो अर्थ पुल कर रहा है तो इट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट यू टेक इट एज मोस्टली 9.8. Right? So our first topic, first we'll divide this into 4 different parts. The first part is your last year's portion. Last year's portion means it is the same thing which I have written above. Distance, speed, time, acceleration. Something is going up, something is coming down. तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट होगा. कोई चीज ऊपर जा रहा है, कोई चीज नीचे आ रहा है. So the first sum, there are 3 sums of this, that is you can take, I'll write it down here. First is phi A, next is phi D, and next is phi E. 3 sums relating to something thrown up, something thrown down, something moving, right? So we'll start with the phi A sum. Every time when you are going to do the sum, you have to know कि भाई क्या है. तो last year you all did V is equal to फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी का मतलब लास्ट में जो तुम देख रहे हो, कोई भी चीज जब तुमने स्टार्टिंग में देखा, तो जब स्टार्टिंग में उसका स्पीड जो भी रहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी, और जो तुम एंड में देखोगे दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. दिस इज यू and this is V, and unit is meter per second. मीटर पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है. नेक्स्ट, now you are having S. S is the distance traveled. इसका यूनिट आएगा M. Then you are having A, that is acceleration. This can be acceleration, automatic, a car moving, but most probably in this chapter we will be doing the acceleration part, but it will be due to gravity. So you have to take that G वाला. G is acceleration, acceleration ही है वो, लेकिन अभी वो ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड बढ़ रहा है. तो इसका आएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो जो कार मूव हो रहा था, कार का स्पीड अभी इतना है, अभी इतना हो गया, दैट यू डिड मोस्टली इन 9th standard. द सेम थिंग यू विल बी डूइंग इन 10th standard also, but 10th standard now our chapter is related to gravity. तो ज्यादातर इसमें ग्रेविटी के सम्स होंगे. तो you have to first know what is gravity. Gravity is not gravitational force. Gravitational force से जो स्पीड बढ़ता है तुम्हारा, that is gravity. हम लोग जो बचपन से बोलते आ रहे ग्रेविटी 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 ग्रेविटी, तो हमारे दिमाग में है हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्रोडक्ट तुमने नीचे फेंका उसका स्पीड बढ़ते जाएगा,
That is G, acceleration due to gravity. We have one more thing in here, that is time. Time is measured in seconds. So this is your last year's portion. Now why we did now? Just because थोड़ा सा brush up करेंगे तो. Now the three rules of speed, distance, time. First is equal to V is equal to U plus AT. This is the first rule. Second rule is equal to S is equal to UT plus half AT square. Third is equal to V square is equal to U square plus 2AS. So we are having these three golden rules. Using these three rules, we will be solving three sums of this chapter. So we will start with the first sum. So first sum is phi A. Whenever you are doing a sum, try to write the question first properly. Once you understand the question, answer automatically आ जाएगा. If someone is asking you what is your name, so you should understand that someone is asking you your name. If you know what he is asking, you can give answer immediately that my name is so and so. If someone is asking some question, but you don't know what is the question, so you will not be able to answer even the simplest things. So understand the question first. So our question in the first part is, an object takes 5 seconds to reach the ground. So this is the ground, right? So there is an object here. It is coming down like this. So time it is taking around 5 seconds. Right? Now whenever it will fall on the ground, you will have some velocity. लेकिन जब वो स्टार्टिंग में ऊपर था तो उसका कोई वेलोसिटी था ही नहीं. That will be 0. कोई भी एक चीज सपोज तुमने ऊपर से फेंका तो स्टार्टिंग में उसका कोई वेलोसिटी नहीं रहता है. यू विल जस्ट लीव इट लाइक दिस. सो व्हेन यू लीव इट देन इट विल फॉल. तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 0 था. So this you have to understand properly that anything falls from top to down. स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 0 रहता है. कोई टेरेस से जंप मार रहा है तो स्टार्टिंग में उड़ता नहीं रहता वो. तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 0 रहता है. फिर वो जंप मारे फिर नीचे जाएगा. हाँ, नीचे गिरते हो उसका वेलोसिटी 0 नहीं आएगा. फिर जमीन को ढम करके मारेगा तो उसका कुछ वेलोसिटी रहेगा वहां पे. तो इसलिए मैंने v के सामने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन u तो 0 है. नाउ द हाइट इज गिवन. हाइट का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. हाइट ले लो या डिस्टेंस ले लो, इट इज गिवन अराउंड 5 मीटर्स. तो हाइट भी दिया है इसका, टाइम भी दिया हुआ है, राइट? बट इट इज गिवन दैट ये दिस इज सम प्लैनेट. तो वी डोंट नो विच प्लैनेट दिस इज. तो इसका हमको जी ढूंढना है तुम्हारे को. सो ग्रेविटी ढूंढना है इसका. सो व्हाट इज द ग्रेविटी? राइट? अब ग्रेविटी कितना होगा? तो एज आई टोल्ड यू, यहां से यू हैव टू टेक द फॉर्मूलाज कि ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग ड्रॉपिंग फ्रॉम टॉप. ऊपर से गिरेगा और नीचे आ रहा है.
तो उसको ये जो ए है ये ढूंढना है, बट ये ए यहाँ पे जी रहता है, बिकॉज द स्टोन इज गेटिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे भी देखो ये ए है, ये असली में जी है, यहां पे भी ए है, ये असली में जी है। तो इन दिस सम यू हैव टू फाइंड जी ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का जी ढूंढना है तुमको। अभी यू नो टी, यू नो एस बोलते हैं इसको, डिस्टेंस और हाइट जो भी है, यू कॉल इट एस। तो एस यू टी मालूम है और ए तुमको ढूंढना है। तो you have 4 formulas. So यहां पे we know S, we know U, we know T, we want A. तो S is equal to UT plus half AT square. Right? So क्या मालूम है तुमको? S, you know it is 5. U, you know it is 0. T, you know it is 5. Here also T, you know it is 5. और A, you have to find it out. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला परफेक्ट रहता है। दूसरे फॉर्मूला में V है और V हमको नहीं मालूम। Here you can see other formulas, you are having this V. फर्स्ट फॉर्मूला में भी V है, थर्ड फॉर्मूला में भी V है, एंड V तुमको नहीं मालूम, तो you cannot take those formulas. This is the only formula that you can take. Right? तो इसमें हमको A ढूंढना है। तो what we'll do, we'll bring all the other things at this side. तो S minus UT is equal to half AT square. तो ये 2 भी ऊपर लेके आ लेते हैं। 2 S minus UT upon T square is equal to A. Now why we have kept A on one side? क्योंकि हमको A ढूंढना है। तो what we'll do, 2, we'll take 2. So right now we'll write the values. According to our sum, the value of S was 5. So 5 minus U is 0. So 0 into 5 upon T was 5. So 5 into 5. So A will come 2 into 5 upon 5 into 5. So 5 will go off. A is nothing but G. So G will be equal to 2 divided by 5, that is around 0.4. So this is the gravity on that planet. Now here again I'll explain you why did we take the time distance speed formula, because here it is nothing connected with the mass or 2 planets or something like that. So here it is just, I told you have to go to your 9th standard syllabus, and because speed distance time दिया हुआ है, तो you have to use the speed distance time formulas. Similarly, now we are having one more sum of the same category. That is, you can take it 5D, I told you. 5D is also same. An object thrown vertically upward. So from here,
the object is going up. So when you throw from here, there will be some velocity. नीचे जीरो तो नहीं रहेगा, ताकत लगाओगे तो ही वो ऊपर जाएगा. So there will be some velocity. और जब ये टॉप में आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए. तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी जीरो. So what we'll do is, first let's see the question. An object is thrown vertically upward. So when it is thrown vertically upward, ये g भी तुमको लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो जो भी लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन देयर. An object is thrown vertically upward, reaches a height of 500 meters. तो ये जो हाइट है या तो तुम S ले लो या D ले लो, ये 500 मीटर्स है. राइट? What is the initial velocity? मैं बोला ना स्टार्टिंग में कुछ तो वेलोसिटी होगा, अदरवाइज वो ऊपर जाएगा ही नहीं. तो स्टार्टिंग में देयर विल बी सम वेलोसिटी, दैट इज व्हाई इट विल गो अप, अदरवाइज व्हाई इट विल गो अप. तो u तुमको ढूंढना है, v तुमको मालूम है दैट इट इज जीरो, s भी तुमको मालूम है. और एक चीज दिया रहना चाहिए, ऑलवेज देयर आर इन टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑलवेज देयर आर 4 थिंग्स. 3 आर गिवन, 1 इज नॉट गिवन. सो 3 अभी आ गए, इसमें एक और चाहिए. एक और के लिए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डाला. हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक. तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना टाइम में नीचे भी आएगा. वो तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2. बट लेट्स सी फर्स्ट. तो मतलब टाइम भी ढूंढना है तुमको. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक, मतलब टी भी ढूंढना है, यू भी ढूंढना है. अब एक और चीज हमको चाहिए, बिकॉज आई टोल्ड ऑलवेज इट इज 4. 3 यू नो, 1 यू डोंट नो. g they have given. तो g is equal to 10 meters per second square. तो मोस्टली g 9.8 होता है, बट समटाइम्स दे टेल यू अज्यूम इट एज 10 बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाता है. तो हियर अगेन वी आर हैविंग 3 we know, 1 we don't know. And gravity here you have to take it minus g because it is going upward. ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए हमको ग्रेविटी नेगेटिव लेना है यहां पे. तो first formula, see again I'll tell you, we'll write it here again. V is equal to 0, G is equal to minus 10, S is equal to 500. Everything is there written here, see. And first हम लोग एक ढूंढते, दो चीज ढूंढना है. तो फर्स्ट वील ट्राई टू फाइंड u. अपन u ढूंढने की कोशिश करेंगे. u भी ढूंढना है और t भी ढूंढना है. तो इसको तुम a भी ले सकते हैं. v, u, a और s. तो यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2as। सी हियर यू कैन सी एस भी आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे v भी यूज हो रहा है और g मतलब a भी यूज हो रहा है और u तुमको ढूंढना है। सो दिस इज योर परफेक्ट फॉर्मूला। और यू कैन राइट द फॉर्मूला इन चेक कि भाई होता है कि नहीं एडजस्ट इसके अंदर वो फॉर्मूला। तो v कितना है 0 इज इक्वल टू u तो तुमको ढूंढना है प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 500। So this you will get 0 is equal to u square minus 10,000. तो 10,000 इस तरफ आएगा तो प्लस 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। So you got u first. You don't have to do anything, just read the question properly. u मिल गया, अब t मिलना है, that t is very easy. You use any first वाला ही फॉर्मूला यूज करो, सिंपल होता है। v is equal to u plus at। Now you know everything, तो कुछ भी यूज करो चलेगा। तो v तुम्हारा वैसे ही 0 ही है, u अभी मिल गया, देखो तुमको 100 मिल गया प्लस माइनस 10 इंटू टी, तो ये उधर गया, तो 10t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 10, तो 10 सेकेंड्स आ गया। बट दे हैव आस्क्ड यू दोनों, अप और डाउन दोनों का। सो 10 सेकेंड्स फॉर गोइंग अप, 10 seconds for coming down. So total time to reach down or to come back is 10 plus 10, that is 20 seconds. This is your second type of sum. Sorry, second sum of the same type. That type was speed distance time. So whatever you have done last year, same thing here you have to follow again. Now again we'll take that phi e sum. Phi e sum is अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम। अभी देखो वापस वही होगा, या तो ऊपर जाएगा चीज या तो नीचे आएगा। तो अभी ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। इट इज रिटन अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। यहां से यहां तक टाइम लग रहा है इसको 1 सेकेंड, और बॉल कभी भी ऊपर से फॉल करेगा तो स्टार्टिंग में उसका स्पीड रहेगा 0। अब g कितना है? g है 10, और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वील टेक इट प्लस 10 ओनली। हाँ, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस 10 लेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आवर क्वेश्चन ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्या गिर रहा है? एक बॉल गिर रहा है, इट टेक्स टाइम 1 सेकेंड, g दिया है तुमको 10। अगेन सी 3 थिंग्स आर गिवन हियर नाउ, 1 is 0, 1 is 1 and 1 is 10। तो फोर्थ थिंग यू कैन फाइंड इट। अब यहां पे फोर्थ चीज क्या है? दे हैव टोल्ड यू कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अभी जब ग्राउंड पे आएगा तो वो बैंक तो करेगा ही नीचे, तो यहां पे कुछ स्पीड होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑल्सो। तो सब चीज ढूंढने बोला है तुम्हें। तो फर्स्ट विल टेक, अभी v ढूंढना है, तो v ढूंढने का इजीएस्ट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u हमको मालूम है 0, a है 10 और टाइम है 1, तो v इज इक्वल टू 10 आएगा तुमको। सो दिस इज वेरी सिंपल सी।
और अभी सेकेंड चीज तुमको ढूंढना है, दैट इज टी ढूंढना है, सॉरी सेकेंड चीज एस ढूंढना है। तो यू कैन टेक दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी ले सकते हैं, या तो ये भी ले सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू कैन टेक एनी वन, दोनों में आंसर आएगा। मैं ये वाला लेता हूं। देखो अभी v हमने ढूंढा, v था 10 स्क्वायर प्लस u तो सॉरी u तो 0 है, तो u को 0 ले लेंगे, प्लस 2 इंटू a है 10 और s हमको ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20s। s इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, तो s आ जाएगा 5 meters। So in all these three sums you have seen that you have to use just formulas of old time, speed, distance and time। पुराने टाइम के तुमको लेना है, वो जो 9th में यूज करते थे। और यहाँ पे ग्रेविटेशन का रिलेशन क्या है कि बॉल इज थ्रोन अप एंड डाउन, तो अर्थ का ग्रेविटेशन आएगा उसके अंदर। एंड आई टोल्ड यू अगेन, वो ग्रेविटेशन और हम जो ग्रेविटेशन पढ़ते उसमें बहुत फर्क है। वो जो दूसरा ग्रेविटेशन है वो अभी नेक्स्ट सेम में आएगा, सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ग्रेविटेशन देन। सो दिस पार्ट इज ओवर। नाउ द सेकेंड पार्ट, इट डील्स विद gravitation force, again gravitational force of the earth। So I'll teach you in 3 parts। So we'll finish off this first part here। In second part I'll teach you the other part, that is the acceleration due to gravity, then weight के sums है, then gravitational force के sums है, then Kepler's law के sums है। So I'll teach you part by part। So first we'll end up this first session। Thank you।